लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनीज। पहले हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किया था। व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर द एंटरप्राइजेस which are owned, controlled and managed by the government. Their main motive is to provide services to general public. Then we have studied the types or forms of public sector enterprises. First was departmental undertakings. Second is a public corporation. Now we will start with our third type, that is government companies. Clear? Now what is government companies? Government company is a company which has minimum 51% of paid up share capital or more than 51% of share capital, and it is held by the central government, state government or partially by central government or state government. So government company means a company which has a minimum of 51% of the paid up capital in the name of the central government, state government and partially by central government or state government. That company is known as government company. So let's study about the examples of government company. First government company is Coal India Limited. Second is National Fertilizers Limited. Third one is Mysore Paper Mills and fourth is Bharat Heavy Electrical Limited. There are so many other examples of government company. In these companies there is a minimum of 51% paid up share capital or more than 51% of the paid up share capital. It is held by central government, state government or partially by central government and state government. Let's come to the another introduction of government companies. Government company is a company which is established under the Companies Act 2013. Clear? It is established under the Companies Act 2013 and these companies are governed by the Act. Clear? जो पुरानी कंपनीज थी वो कंपनीज एक्ट 1956 से गवर्न होती थी, वो एस्टेब्लिश हुई थी कंपनीज एक्ट 1930. इट इज़ गवर्नड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 जो पुरानी कंपनीज थी. क्लियर? फिर उस एक्ट को रिपील किया गया, ख़त्म किया गया, हटाया गया एंड देन न्यू कंपनीज आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दे आर गवर्नड बाय सच पर्टिकुलर एक्ट. क्लियर? उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्नमेंट कंपनीज आर एस्टेब्लिश्ड टू गिव कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट कंपनीज क्यों एस्टेब्लिश की गई थी? जस्ट टू गिव कंपटीशन टू द प्राइवेट सेक्टर. क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं द होल कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि द मिनिमम कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल इज 51% or more than that by the central government, state government और partially by central और state government. तो कंट्रोल कौन करता है इनको? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट becomes the major shareholder in the enterprises. गवर्नमेंट एक मेजर शेयर होल्डर होता है इन कंपनीज में बिकॉज 51% और मोर देन 51% शेयर कैपिटल किन की होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की. See the next point, if local government acquire 51% or more than 51% of the capital, it will not be treated as the government company. अगर 51% paid up share capital और 51% से ज़्यादा central government या state government के नाम पे होता है और partially by central government or state government, then only it is considered as the government company. And government company is a company which is established under the Companies Act 2013. पहले पुरानी कंपनीज किस कंपनीज एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश होती थी? 1956. क्लियर? उसके बाद ये एक्ट को रिपील किया गया, ये एक्ट को हटाया गया. नाउ इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, द न्यू कंपनीज आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर? सो लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. अगला देखिए फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. पहला फीचर इज़ फॉर्मेशन.
लाइक एनी कंपनीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो कैसे बनती है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो पुरानी कंपनीज होती थी वो किस एक्ट के अंडर बनती थी, 1956 कंपनीज एक्ट। 1956 कंपनीज एक्ट को रिपील किया गया। अब जो न्यू कंपनीज की फॉर्मेशन होती है दैट इज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट फीचर कम टू द ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। जो ऑनरशिप होती है हमें पता है मिनिमम 51% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल इज इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्शली इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शली इन द नेम ऑफ वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। सो मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज़्यादा कौन हेल्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्शली दोनों हेल्ड करते हैं। तो ऑनरशिप लाइज विद द गवर्नमेंट। क्लियर। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज मैनेजमेंट। तो इनको मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनीज आर मैनेज्ड बाय बच्चे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट। क्लियर। गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों अपॉइंट करती है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ द मैक्सिमम शेयर इन द ऑनरशिप। कितना शेयर, मिनिमम 51% और मोर देन दैट। क्लियर। तो सारी मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट कंपनीज आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फर्दर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट owing to the fact that government has the maximum share in their ownership. Clear. उसके बाद कम टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज़ फाइनेंसिंग। अब इनको फाइनेंस कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनीज आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इनकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, गवर्नमेंट से होती है। बट फिर भी अगर नीड अराइज हो तो जनरल पब्लिक से भी ये पैसा गैदर कर सकते हैं। सो दे आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द पब्लिक। क्लियर। नेक्स्ट फीचर इज नोन एज अपॉइंटमेंट। जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट कंपनीज की, दे आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंडीशंस। मेनली अपॉइंटमेंट किनके अंडर होती है, किनको ध्यान में रख के अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रख के। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या थे, देवर द डॉक्यूमेंट्स। जब हमने कोई डीलिंग्स आउटसाइड पार्टी से करनी होती हैं दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मीन्स जब भी इंटरनल डीलिंग्स होती हैं दैट इज़ नोन एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ की, दे आर किनको ध्यान में रख के की जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बच्चे इन प्रीवियस चैप्टर हमने डिटेल में किया हुआ है व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर। इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो इनके ओन सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जो गवर्नमेंट कंपनीज के मेंबर होते हैं दे हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है, दे कैन परचेज द प्रॉपर्टी ऑन देयर ओन नेम, दे कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज ऑन देयर ओन नेम, दे कैन sue any other party, they can be sued by any other party। इनकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। Next feature of government company is administrative autonomy. The government companies have complete administrative autonomy. They can form rules and regulation regarding their own internal management. इनके ऊपर complete freedom इनको दी जाती है। ये खुद के rules and regulation frame कर सकते हैं regarding their own internal management, regarding their own internal control. There is less interference of political parties. Clear? Clear with the features? So again, let's revise this topic, government companies. Government companies are the companies जिनकी minimum paid up share capital 51% or more than 51% is held by the central government, state government और partially by central and state government. हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे गवर्नमेंट कंपनीज के बच्चे। फर्स्ट इज कोल इंडिया लिमिटेड, सेकेंड इज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, थर्ड इज माइजोर पेपर मिल, fourth is Bharat Heavy Electrical Limited and so on. Government companies are the companies which are established under the Companies Act 2013 and they are governed by such act.
जो पुरानी कंपनीज होती थी उनको किस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया जाता था? 1956। 1956 एक्ट को रिपील किया गया, हटाया गया। नाउ द न्यू कंपनीज विच आर फॉर्म्ड, दे आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। दे आर एस्टेब्लिश्ड टू गिव कंपटीशन टू द प्राइवेट सेक्टर। ये क्यों एस्टेब्लिश की गई है? टू गिव कंपटीशन टू द प्राइवेट सेक्टर। The control is exercised by the government and government become the major shareholder in these enterprises. Clear? Then we have done the features of government companies. Formation under the Companies Act 2013. Ownership lies with the government. Management is done by the board of directors. Financing is done by the government as well as public. The appointment किनको ध्यान में रख के की जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. They have separate legal existence. Then the government, they have fully administrative autonomy. बच्चे उसके बाद come to the merits of government companies. पहला एडवांटेज गवर्नमेंट कंपनीज का क्या है? ईजी फॉर्मेशन. जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं दे आर जस्ट रजिस्टर्ड बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज़ नो नीड टू पास एनी स्पेशल एक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज गवर्नमेंट कंपनीज. क्लियर? तो कोई स्पेशल एक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होती कि इनकी फॉर्मेशन हो. दे आर जस्ट फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. Second advantage or merit of government company is autonomy in operation. Clear? अभी देखो autonomy in operation कैसे होता है. जो government companies होते हैं they can function independently. There is no interference of the government, so there is proper freedom in their operations. Government companies independently function कर सकते हैं without the interference of the government, so there is autonomy in their operations. खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं, खुद ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर? दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली. देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं दे आर फ्लेक्सिबल. दे कैन चेंज देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. क्लियर? तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी इन द आवर ऑफ नीड. जब भी ज़रूरत होती है द एडवांटेज इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. वो चेंज कर सकते हैं अपने रूल्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी इन द आवर ऑफ नीड. क्लियर? फोर्थ मेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ क्विक डिसीजंस. जो डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में दे आर टेकन वेरी वेरी क्विकली. ओके? दे आर टेकन वेरी वेरी क्विकली इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मेलिटीज़ एंड रेड टेपिज्म. कोई रेड टेपिज्म नहीं होता. देयर इज़ लेस पेपर वर्क, देयर इज़ नो रेड टेपिज्म. इतने एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ नहीं होते हैं. सो द डिसीजंस आर टेकन वेरी वेरी क्विकली इन द एब्सेंस ऑफ दीज अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़. फिफ्थ demerit of government company is easy financing. These government companies they don't have to depend on the government for their financing. Clear? जब भी उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है उनको गवर्नमेंट पे हमेशा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती. इफ़ दे विश दे कैन गेट द कैपिटल एंड बोरो फ्रॉम द जनरल पब्लिक ऑल्सो. क्लियर? सो फाइनेंसिंग बिकम्स अ वेरी वेरी ईजी बिकॉज दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द हेल्प ऑफ ऑलवेज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की हेल्प के ऊपर इनको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कैपिटल कहाँ से बोरो कर सकते हैं? जनरल पब्लिक. सो देयर इज़ ईजी फाइनेंसिंग. सिक्स्थ पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एडवांटेज इज़ अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन. देखो हमने देखा था गवर्नमेंट कंपनीज आर द कंपनीज जिनकी मिनिमम 51% और मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के हाथ में होती है. क्लियर? देन प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंट कंपनीज. अगर 51% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास होती है तो बाकी तो प्राइवेट सेक्टर के पास होगी. प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंट कंपनीज. सो जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, वी कैन इंक्लूड देम इन अवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लियर? उनको हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले सकते हैं. वो एक प्रोफेशनल डिसीजन देंगे, वो प्रोफेशनली कंपनी को एफिशिएंटली मैनेज करेंगे. सो देयर वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. Clear with the merits of government companies? Let's come to the demerits of government companies. अब हम demerits की बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की. पहला demerit is incomplete autonomy.
Incomplete autonomy means incomplete freedom. Most of the directors of the government company कौन nominate करता है? Government. हमने किया जो board of directors होते हैं government company के, they are nominated by the government only. They are chosen from the government ministries only. Clear? तो वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो मैक्सिमम इंटरफेयर करती है इनटू द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. सो दे डू नॉट हैव कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. सिर्फ थ्योरी में ही पॉसिबल है कहना भी इनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है, बट इन रियलिटी दे हैव इनकम्प्लीट फ्रीडम और इनकम्प्लीट ऑटोनॉमी बिकॉज द गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरफेयर इन देयर डीलिंग्स. दे ऑलवेज इंटरफेयर इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. क्लियर? सेकेंड डीमेरिट इज नो कॉन्टीन्यूटी इन देयर पॉलिसीज़. जो पॉलिसीज़ होती हैं ना उनमें कॉन्टीन्यूटी नहीं बचती. क्यों नहीं बचती? बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज़ में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ के चेयरमैन होते हैं, वो बहुत जल्दी रिप्लेस किए जाते हैं. जब भी कोई न्यू ऑफिसर कंपनी में आता है, ही रन द कंपनी अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश. वो बार बार पॉलिसीज़ को चेंज करता रहता है. व्हेन द न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, न्यू चेयरमैन अराइव्स इन द कंपनी, ही कॉन्टीन्यूसली स्टार्ट मेकिंग न्यू पॉलिसीज़. सो द ओल्ड पॉलिसीज़ में तो कोई कॉन्टीन्यूटी रहती नहीं है. क्लियर? ही ट्राई टू मेक ऑल द डीलिंग्स ऑन देयर ओन विल. ही ट्राई टू फॉर्म रन द कंपनी अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल. सो द एम्स कंपनीज़ के तो कंप्लीट ही नहीं होते. जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के, दे डू नॉट गेट अचीव्ड. वाई? बिकॉज देयर इज चेंज इन पॉलिसीज अगेन एंड अगेन. क्लियर? सो देयर इज नो कॉन्टीन्यूटी इन द पॉलिसीज. थर्ड डीमेरिट इज लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी. प्रोफेशनल एफिशिएंसी चाहिए होती है टू रन अ कंपनी. क्लियर? बट this professional efficiency is not found in that board of directors which are nominated by the government. ये प्रोफेशनल एफिशिएंसी उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं दिखती जो किनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के. तो कंपनी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन के रह जाती है इन प्लेस ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग. क्लियर? सो देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. सो ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ये कंपनी का में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन के रह जाती है. फोर्थ इज़ फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वो हमने कहाँ पे प्रेजेंट करने होते हैं? पार्लियामेंट में. जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट्स को सबमिट करना पड़ता है, जो सीनियर डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, दे डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्की डिसीजन. दैट इफ़ वी विल टेक एनी काइंड ऑफ रिस्की डिसीजन, देन वी विल गेट क्रिटिसिज्म इन द पार्लियामेंट. बट इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू टेक वेरी वेरी risky decisions for the success of the business. If the board of directors, the senior most managers are also only not going to take any kind of risk, then तो objectives कैसे हम achieve कर पाएंगे? So it is very very necessary for the government companies एक risky decision लेना for successful running of the business. So these companies remain slow in the development point of view. Clear? तो इनका development होता ही नहीं because ये कोई risky decision लेते ही नहीं, because दे फियर कि है ना हम पब्लिक को अकाउंटेबल होंगे. इफ़ वी आर गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्की डिसीजन, वी हैव टू सबमिट अवर अकाउंट्स इनटू द पार्लियामेंट. वी हैव टू टॉक एवरी एस्पेक्ट इनटू द पार्लियामेंट. So these were the demerits of government companies. So government companies are the companies in which the minimum 51% or more than 51% of the paid up share capital is held by the central government, state government or partially by central government or state government. Government companies are the companies which are established under the Companies Act 2013 and it is also governed by the Act. Its limitations, powers, demerits, objectives are all stated in that particular Act. Then we have studied the merits. Easy formation. Formation is very very easy. It is formed under the Companies Act 2013. There is autonomy, freedom in their operations. They can make the changes. They can take quick decisions without the interference of the government. They get easy financing from the government as well as from the general public, and they also get the benefit of private sector participation as half of the investment is done by the private sector. Clear? They get board of directors as private individuals. They can
efficiently run the business. Then we studied the demerits of government companies, that is incomplete freedom, no continuity in policies, lack of professional efficiency, and fear of public accountability. So this is all about the topic government companies. Thank you so much.